Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy and enjoying your teaching from home. So, student, today date is 12, chapter number 14, Community Services, and take out your book, open page number 83. Is it clear? Take out your book, students, and open page number 83. Before starting today topic, let do little recapitulation what we have done in our previous video. So yesterday, student, we are discussing the what are the functions of the Gram Panchayat. We are discussing the function of Gram Panchayat. Okay, we are discussing the functions of Gram Panchayat. For example, maintaining cleanliness of the village, that is the role of the Gram Panchayat. Okay, now I think everyone this is clear to you what is a Gram Panchayat. This is a local, okay, local self government, and it is in the rural area, that we say it as a villages area. Okay, so एवरी विलेज हैज देयर ओन ग्राम पंचायत. ठीक है, जितने भी विलेजेस हैं उन सबकी अपनी ग्राम पंचायत होती है. एंड द मेंबर्स विच आर इलेक्टेड आर फ्रॉम द सेम विलेज एंड दे आर इलेक्टेड बाय द बोर्ड्स गिवन बाय द पीपल ऑफ द सेम विलेज. ठीक है, जो भी मेंबर चूज किए जाते हैं ग्राम पंचायत के लिए, वो सारे मेंबर बेटा उसी विलेज के होते हैं, और उनको चूज करने के लिए जो वोट्स देते हैं पीपल, वो भी उसी विलेजेस के होते हैं. दैट इज द रीजन दे नो ऑल द पीपल लिविंग इन दैट एरिया. तभी तो उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकेंगे. ठीक है स्टूडेंट. सो एंड मिनिमम एज फॉर गिविंग द वोट इज which has government had decided, that is 18. The person whose age is 18 or above 18, that person can give the vote. That person can give the vote whose age is 18 or above 18. So student, in function of Gram Panchayat we have discussed maintaining cleanliness of the village. So cleanliness of the village, that is a very important student, because if the surroundings are not neat and clean, then what about the, if the surroundings are not clean, so definitely people living in that area are not fit and healthy. They will suffer from different types of diseases. ठीक है, so this is also one of the function of gram panchayat, to maintain the cleanness in the village. After that I explained you planting tree, digging wells, and providing clean drinking water. These are also the function of the gram panchayat. सेटिंग अप द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मैंने आप लोग से बताया था विलेजेस में आप जाओगे तो डिस्पेंसरीज होती हैं. ठीक है, इन दिस द डॉक्टर गिव मेडिसिन टू द विलेज पीपल एंड दे आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन. दे आर नॉट पेइंग मनी फॉर दैट. ये भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि दे आर नॉट पेइंग मनी फॉर दैट. After that, construction of, if any new building is constructed in that area, so that function is also of a gram panchayat. With the help of these members of gram panchayat, they construct new buildings in the villages. And after that, time to time seminars are arranged for the peoples of a villagers. Why? Because main occupation, जो main काम धंधा है लोगों का, जो लोग villages में रहते हैं, that is a farming. That is a farming. So time to time seminars are arranged for these farmers, and in these new technologies of how to increase the production of a crops, how
and even provide good quality seeds to the farmers. Okay, so these things happen, and time to time seminars are arranged in the villages to uh, tell the farmers about the new technology of farming. Another, health center, health related advices are also given. So for this purpose also, time to time seminars are arranged in the villages area to tell, to make them aware of the cleanness and aware of the health and hygiene. Okay, so these things are also provided. Setting up a primary school, that I have already explained you, that governments have set up the primary schools in villages, but they also take care of this. That is a member of a gram panchayat. So, okay, government is providing free education to the students of the villages. Okay, if they are studying in that school, so they don't have to pay any fees for that. They get the school dress, all the stationery, that is copies and books, and even they are getting midday meal. It means in the when they are going in the school for studying, they are also getting the food for eating. Okay, all this we have discussed. And establishing adult education center. Okay, there are they this is also one of the important function of the gram panchayat, that they are uh, arranging adult education centers also in the villages, so that maximum people in the villages are not educated. So in these adult education centers, peoples teach them. Okay, अब आपकी तरह पेपर नहीं चलते हैं उनके, लेकिन उनको थोड़ा बहुत जनरल छोटी चीजें पढ़ना सिखा दिया कि वो पढ़ सकें, या तो दे हाउ टू साइन। ठीक है, ये सब छोटी चीजों की, थोड़ी बहुत चीजों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। ठीक, अब ये पॉइंट कल था। फिर यहाँ सेटलिंग डिस्प्यूट्स अमंग विलेजर्स, सेटलिंग, अब यहां से एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। Okay, now see student, what does it means settling disputes among villagers? If there are, देखो, so many peoples are living in the village, some if sometime if they fight, ठीक है, अगर उन लोग में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इफ दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, सो दैट इज द रोल ऑफ द ग्राम पंचायत मेंबर्स, दे सेटल्स देयर प्रॉब्लम्स, दे लिसन एंड आफ्टर दैट दे सेटल देयर प्रॉब्लम्स। जो आपस में लड़ाई झगड़े विवाद गांव के लोगों के हो जाते हैं ना आपस में, उसको भी सेटल करने का, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स करते हैं। कौन करता है? ग्राम पंचायत के मेंबर्स करते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर डैट अगर इफ देयर बात नहीं होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके बाद तो बेटा आप लोग जानते ही हो, पुलिस स्टेशन भी है, कोर्ट भी है, वहां भी जाके, तो छोटी मोटी लड़ाइयां जो गांव के लोगों में आपस में हो जाती हैं, उसको भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स क्या है सेटल करते हैं। ठीक है, दे डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड देन दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स आल्सो, डिस्प्यूट्स अमंग विलेजर्स। ये हो गया। नाउ स्टूडेंट, आई विल now a new topic, municipal corporation and municipal committee. Okay, now, okay, I will discuss these, both the terms are new for you. Okay, so student, this now municipal corporation and municipal committee, this is a new term for you. You have not studied this thing in class 1 2 and in your earlier classes. So one by one I explain you.
Okay. So student, first all of you open page number 84. Okay, open page number 84. Today I tell you what is municipal committees and what is municipal corporation. First of all, open page number 84 of your book. See, in towns and city, the local bodies that manage the affair of the area are municipal committees, also known, and municipal committees are also known as municipalities. Okay, they are also known as municipalities. Okay, and the municipal corporation, big cities like Delhi have the municipal corporation, whereas smaller towns have municipal committees. Okay, so that's the difference. देखो, पहले इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया ग्राम पंचायत. ठीक है, तो ग्राम पंचायत क्या बेटा, दे लुक आफ्टर द पीपल्स हु आर लिविंग इन द विलेजेस. जो विलेजेस में पीपल्स रह रहे थे उनके वेलफेयर के लिए क्या बनाई गई बेटा, ग्राम पंचायत. ठीक, सारी चीजें एक्सप्लेन की. ग्राम पंचायत के मेंबर्स आर फ्रॉम द सेम विलेजेस एंड द पीपल्स हु आर गिविंग देम वोट to elect them, they are also from the same villages. Now in the same manner student, when we are talking about the towns, cities and big cities, okay, so when we are talking about the towns, मतलब छोटे शहर, और बड़े शहरों की जब हम बात करते हैं बेटा, तो देखो जो छोटे शहर होते हैं, ठीक है, वहां पे इसे क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कमेटीज बोलते हैं. ठीक है, वहां पे इसे हम बोलते हैं बेटा म्युनिसिपल कमेटीज बोलते हैं. और जो बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली है, मद्रास है, कोलकाता है, मुंबई, जो बड़े शहर होते हैं उसमें इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं. सी, दे आल्सो, वाई दीज आर ऑन these municipal committees and municipal corporations, they look after the welfare of the people living in that area. ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत का रोल क्या था, अभी मैंने आपको जस्ट फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत पूरे पढ़ाए हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्राम पंचायत, दे आर लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स लिविंग इन द विलेजेस. इन द सेम मैनर जो छोटे शहर होते हैं, टाउन्स है, जो छोटे शहर होते हैं, वहां जो पीपल्स के लिए जो वर्क करती हैं वो करती हैं म्युनिसिपल कमेटीज करती हैं. ठीक है, और बड़े शहरों में इसे हम लोग क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं. ठीक, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. अब देखो हाउ द मेंबर्स आर इलेक्टेड. मेंबर्स कैसे इलेक्टेड होते हैं, हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटीज एंड कॉर्पोरेशन, वो चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कमिटीज. ओके, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ द मेंबर आर इलेक्टेड. ठीक है, म्युनिसिपल कमिटीज. ठीक, देखो, अब नाउ व्हाट हैपन स्टूडेंट, द सिटी सिटीज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया. ठीक है, वार्ड्स बना. आप लोग को कल ऑनलाइन में वन चाइल्ड इज आस्किंग मी सर व्हाट इज ए वार्ड. सो सी स्टूडेंट, देयर इज अ बिग सिटी, एक बड़ा एरिया है, तो उसे डिफरेंट एरिया में बांट लिया जाता है. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन और सिटी. ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, टाउन की पॉपुलेशन और सिटी में. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको स्कूल्स के ऊपर बताता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और फिर मैं इसी टॉपिक पे आ जाऊंगा. ठीक है, अब देखो, ठीक है, चलो यहां से सीखो. अब क्या है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टाउन है. ठीक है, टाउन का ये तो मैं बोर्ड पे एक सिंपल पिक्चर बना रहा हूं, और इट इज डिवाइडेड इनटू, मान लो
इतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया किसी टाउन को, स्मॉल सिटी है तो ये वार्ड 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। मान लो किसी टाउन को हमने 12 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। मान एरिया वाइज, बिकॉज मेंबर ऑफ द नंबर ऑफ वार्ड्स, किसी एरिया में कितने नंबर ऑफ वार्ड्स होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन और सिटी। उस टाउन में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी सिटी है। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये 1 2 3 4 जो नंबरिंग की, ये समझ लो कि किसी टाउन को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ फ्रॉम एवरी पार्ट, सुनो बात ध्यान से सुनना, फ्रॉम एवरी पार्ट। अब इस पार्ट में जो कम्युनिटी जो लोग रहते होंगे उसी में से मुझे एक मेंबर चूज करना है, ठीक है। इसमें से मुझे 1 मेंबर चूज करना है, ठीक है। इस एरिया में जितने भी लोग रहते होंगे इन्हीं में से मैंने एक मेंबर चूज करना है। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, मेथड ऑफ हाउ वी इलेक्ट द मेंबर। मेंबर को हम कैसे चूज करते हैं, बाय गिविंग द वोट, बाय गिविंग द वोट वी चूज द मेंबर। अब देखो ये जो आपकी टाउन है, इट इज डिवाइडेड, टाउन मान लो 12 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो फ्रॉम एवरी पार्ट वी हैव टू चूज 1 मेंबर, सारे पार्ट से हमें एक मेंबर चूज करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु दिस पर्सन इज चूज बाय गिविंग द वोट्स, सो विच पीपल गिव द वोट। जैसे विलेजेस होते थे, बहुत से गांव होते हैं, मैंने आप लोग को क्या बताया था, हर गांव की अपनी ग्राम पंचायत होती है, ये बात बताई थी। और द पीपल ऑफ दैट विलेज चूज द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। ऐसा नहीं है कोई विलेज है उसी विलेज के मेंबर उसको वोट देते हैं, ये नहीं कि दूसरे विलेज वाले भी आ गए वोट देने, ऐसा नहीं होता है। मेंबर भी किसके होंगे, उसी विलेज के होंगे, पीपल्स भी किसके होंगे, उसी विलेज के होंगे, द सेम विलेज। सो फॉर एग्जाम्पल इफ सम टाउन इज डिवाइडेड इनटू 12 वार्ड, सो इसमें से एक मेंबर चूज करना है। नाउ द हु विल गिव द वोट, सो द पर्सन्स विच आर people living in this area। देखो ये 12 वार्ड्स हैं, ये 12, हर वार्ड में से एक मेंबर चूज करना है। तो देन हु विल गिव द वोट, पीपल लिविंग इन दिस एरिया। ये जो नंबर 1 वार्ड में जितने पीपल्स रहते हैं यही वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 वार्ड में मुझे एक मेंबर हर वार्ड में से चूज करना है तो 12 वाला भी वोटिंग कर सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 वोटिंग कर सकते हैं। नो, दैट इज नो, इसे अंडरस्टैंड करो, ठीक है। 1 वार्ड है, सो देखो मैंने लिख भी दिया, अगर आपको समझने के लिए नोट करना है रफ कॉपी में तो आप नोट कर सकते हो। मैंने एक टाउन का एग्जांपल लिया, टाउन को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये वार्ड हो गए, वार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फ्रॉम ईच वार्ड आई विल, फ्रॉम ईच वार्ड 1 मेंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। तो क्वेश्चन अराइज होता है, मेथड ऑफ सिलेक्शन इज द वोटिंग एंड व्हाट इज द एज, एज इज अगेन द सेम एज। जितने भी इलेक्शन होते हैं बेटा सबके लिए क्या है, सेम एज रखी है। क्या, द पीपल हुज एज इज 18 और अबव 18, जो भी पीपल जिसकी एज 18 ईयर्स है या उससे अबव है, दैट पर्सन कैन गिव द वोट इन द इलेक्शन। मेथड क्या है, इलेक्शन से सिलेक्शन होता है, ठीक है। और एंड द एज लिमिट इज, his age should be 18 or above 18. Now see from the first word, if 1 member is chosen, then who will give the vote, people living in this area। तो इस एरिया में जितने लोग रहते होंगे यही वोट करेंगे। ये सब जो अदर्स नंबर है वार्ड वाले, ये वोटिंग नहीं करेंगे। एक मेंबर चूज हो गया यहां से। अब हर वार्ड से 1 मेंबर लेना है, मान लो हमने सेकंड से 1 मेंबर चूज करना है। तो अब इस एरिया में पीपल लिविंग इन दिस एरिया, पीपल लिविंग इन दिस एरिया, दे
will give the vote, they will give the vote. So दैट इज अ रीजन हर वार्ड से एक मेंबर चूज किया, लेकिन अब ये चीज आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि 1 नंबर वार्ड से अगर हमने एक मेंबर लिया है तो हु आर द पर्सन हु आर गिविंग द वोट इन द इलेक्शन, पीपल लिविंग इन दिस एरिया, इन दिस एरिया मीन्स वार्ड नंबर 1। 2 में से लेना है तो पीपल लिविंग इन दिस एरिया मीन्स वार्ड नंबर 2। 3 में से लेना है तो कौन वोट करेगा, पीपल लिविंग इन दिस एरिया मीन्स वार्ड नंबर 4। ठीक है, इसी तरह हो गया पूरा। आगे ही बात समझ में सबको। तो बेटा अब जो म्युनिसिपल कमेटीज होती हैं इसमें मेंबर कैसे चूज करते हैं, ये मेथड क्लियर हो गया। कोई भी टाउन या सिटीज होती है उसको एरिया वाइज डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम लोग वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4 बोलते हैं। ओके, अब वार्ड 1 का जो मेंबर होगा उसको चूज करना है, तो पीपल हु आर लिविंग, जो नंबर 1 वार्ड के एरिया में जो पीपल्स रहते हैं लोग, वही लोग उसको वोट करेंगे। इज इट क्लियर? इन द सेम मैनर 2, 3, 4, 5, 6। और द पर्सन विच इज इलेक्टेड, जो चूज होता है, जैसे मैंने 1 मेंबर चूज किया कर लिया, एक मेंबर चूज कर लिया, सो पर्सन विच इज चूज फ्रॉम ईच वार्ड, उस मेंबर को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, नोट करना तो नोट कर लो, काउंसलर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं काउंसलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंसलर बोलते हैं। ठीक है, ये जो मेंबर्स हैं विच आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड, जो सारे वार्ड से जो मेंबर चूज होके आए उन्हें हम बोलते हैं काउंसलर। इज इट क्लियर? यहीं पे बेटा आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है कि म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। देयर इज अ वर्किंग, दोनों का सेम है, दे आर ऑल्सो डूइंग वेलफेयर फॉर द पीपल लिविंग इन द टाउन्स, एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज। दोनों उन्हीं के लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है। मेंबर्स जो चूज होके आते हैं इन मेंबर्स को हम लोग काउंसलर्स बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो ये 12 मेंबर्स चूज करके, आपके बुक में 20 दिया है, टॉन इज डिवाइड मेनी वार्ड, if a 20 has, if town has 20 वार्ड फॉर एग्जांपल, तो उसके काउंसलर कितने होंगे, 20 इलेक्टेड मेंबर। सो मैंने एक छोटा एग्जांपल ले लिया है, मैंने 12 ले लिया, आपकी बुक में 20 दिया है लेकिन मैंने 12 का एग्जांपल ले लिया, क्योंकि एग्जांपल है, कुछ भी हम ले सकते हैं, 12 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, वो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सो अब देखो ये 12, ये टाउन कितने वार्ड्स में थी, 12, तो कितने मेंबर्स इलेक्टेड हुए, 12 मेंबर्स। कितने मेंबर्स मिले बेटा हमको, 12 मेंबर्स। ओके, और इन मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन मेंबर्स को हम लोग काउंसलर बोलते हैं। इन मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, काउंसलर। व्हाट वी से टू these members are known as counselors, these members are known as counselor। now the question arises, अब ये 12 मेंबर्स अपने में से एक हेड चुनेंगे। इज इट क्लियर? जैसे मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट में बताया था ना, स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। देयर आर मेनी अदर, बट हु इज द हेड, हेड इज द चीफ मिनिस्टर, द हेड ऑफ द स्टेट। जैसे आपकी स्टेट यूपी में आप रहते हो, आपकी स्टेट का हेड कौन है, योगी आदित्यनाथ। ओके, अब मान लो ये 12 थे, 12 मेंबर्स इलेक्टेड हुए, तो इन्हें बोलेंगे काउंसिलर्स। ओके, अब ये 12 मेंबर आपस में किसी एक को हेड चुनेंगे। देखो अब पब्लिक नहीं आ रही है बीच में, अब पब्लिक बीच में नहीं आ रही है बेटा, पब्लिक ने क्या, मेंबर्स चूज किए, इलेक्ट किए, पब्लिक ने, ये जो वार्ड्स थे, वार्ड्स की पब्लिक ने मेंबर्स दिए, हर वार्ड में से 1 मेंबर, 12 मेंबर्स आ गए, इन्हें हम बोलते हैं काउंसिलर बोलते हैं। and now these 12 members choose one person who is the head, वो इनका क्या होगा, हेड होगा ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी। और जो वो हेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चेयरमैन बोलते हैं। दैट्स अ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ही इज नोन एज। अब जो म्युनिसिपल कमेटी जो है आपकी,
हेड हेड अब जो म्युनिसिपल कमेटी है ये 12 मेंबर आपस में एक हेड चूज कर लिए, इसे हम लोग बोलते हैं चेयरमैन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चेयरमैन। तो हमेशा बेटा मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर, क्योंकि मैं इसे इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि देखो एज ए टीचर मेनी टाइम्स इस बुक को स्कूल में लगे हुए ये तीसरा साल है, ठीक है। और आप तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, बच्चे उल्टा आंसर लिख देते हैं। जहां चेयरमैन होता है वहां मेयर लिख देते हैं, जहां मेयर है वहां चेयरमैन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बात इसलिए मैं इस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं कि अब देखो म्युनिसिपल कमेटी हेड उसको चेयरमैन बोलते हैं। और जो बड़े बड़े शहरों में थी, जो मैंने आप लोग को बताया क्या था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, that is municipal corporation. अब नाउ स्टूडेंट मेथड ऑफ इलेक्शन इज सेम इन बोथ। मैंने ये मेथड ऑफ इलेक्शन किसमें बताया था आपको? म्युनिसिपल कमेटी में। सेम मेथड इज इन द प्लेस ऑफ इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी ऐसा ही होता है। बहुत बिग सिटी है, मान लो वो 30 वार्ड्स में डिवाइडेड, मान लो 30 वार्ड्स में डिवाइडेड, 30 वार्ड्स हैं, तो आपको 30 क्या मिल गए? 30 मेंबर्स मिले। तो 30 मेंबर्स मिले, हर वार्ड से 1 मेंबर, तो इस 30 मेंबर्स को आप लोग क्या कहोगे? काउंसलर कहोगे। आप लोग उनको क्या बोलोगे? काउंसलर। सेम थिंग इन 30 वार्ड्स मेंबर को आप लोग क्या कहोगे? काउंसलर। म्युनिसिपल कमेटी में भी आप क्या बोलते थे? काउंसलर बोलते थे। लेकिन ये जो 12 मेंबर्स थे जिन्होंने अपने में एक हेड चुना, उससे हम लोग कहे म्युनिसिपल कमेटी, इसका जो हेड होगा चेयरमैन होगा। अब मान लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 30 मेंबर्स हैं, ये भी अपने में से एक मेंबर चूज करेंगे, दे आल्सो चूज 1 हेड। अब ये मेंबर्स चूज कर रहे हैं आपस में, ये 30 मेंबर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि हु इज द हेड। अब जो इनका हेड होगा बेटा, उसको हम लोग कहते हैं मेयर। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपल कमेटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कमेटी होगी तो हेड इज नोन एज चेयरमैन, ये हमेशा याद रखना। इन द केस ऑफ म्युनिसिपल कमेटीज हेड इज नोन एज चेयरमैन, and in the case of municipal corporation the head is known as mayor, and the method of selection is same in both the cases. In both means in municipal committees also and in municipal corporation also. I hope you are able to understand what I have explained. आ गया समझ में? ठीक है। अब इनके फंक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज म्युनिसिपल कमेटी एंड व्हाट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इट इज नाउ, अब देखो, सो दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, दैट इज हेड ऑफ म्युनिसिपल कमेटी इज नोन एज चेयरमैन। म्युनिसिपल कमेटी इट मीन्स हेड इज चेयरमैन, and when it become municipal corporation then the head of the municipal corporation is known as mayor। और मेंबर को दोनों ही केस में काउंसलर ही बोलते हैं, या तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं, जैसे 30 मेंबर्स हैं, उनको काउंसलर ही बोलेंगे। म्युनिसिपल कमेटीज में जैसे ये एग्जांपल दिया था मैंने, 12 वार्ड्स में इसे बांटा था, तो इन 12 मेंबर को क्या बोला हमने? काउंसलर ही बोला। मेंबर्स में सेम वर्ड यूज होता है काउंसलर, बट when it is about the head, so head of the municipal committee is a chairman and head of the municipal corporation is known as mayor. That is the difference. Okay, thank you student.